اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فعا، لام دو پچھلن، فعالن. یہ وہ الفاظ ہیں جو سب سے مشکل الفاظ ہیں، اور حروف یہ جو جن حروف کے اوپر شد آ جاتا ہے، تو جن لوگوں کو تجوید کا نہیں پتہ اور ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اکثر لوگ تو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن جو نہیں پڑھ سکتے ان کو یہ الفاظ بہت مشکل لگتے ہیں. تو ان کو آج سیکھتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ 7-8 لفظ ہیں، یہ اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آپ نے تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے. فعال، آگے ہے کاف لال زیر کذ، لال الف زبر ذا، کذا، با دو زبر بن، کذابن. اچھا، یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اگر یہاں ذال کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم پڑھتے کاف زال زیر کذ، لال الف زبر ذا، ٹھیک ہے، پھر کذا پڑھا جاتا، یا زال کو ساکن کر دیتے ہیں، آگے الف کے حمزہ کے اوپر جو بھی حرف ہوتا وہ پڑھا جاتا، زبر ہوتی زیر جو بھی. لیکن یہاں پر زال کے اوپر شد ہے تو اس کو پہلے کاف کو زال سے ملائیں گے، پھر زال کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. کذا، کذابن. اور اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر الف پڑھا جائے گا. یہ جو دو زبر ہیں، ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا. سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ الفاظ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو آپ نے یہی صورتحال، جو الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیزیں بتا رہا ہوں، وہی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کذابا. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو با کو واو سے ملائیں گے، چاہے واو کے اوپر شد ہے یا نہیں ہے، لیکن با کو واو سے ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا. دو زبر کے بعد واو آ رہا ہے، اور یہاں پہ ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا پھر؟ کذابا وہاجا، ٹھیک ہے. با کو پھر واو سے ملائیں گے. اور اگر اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ دیکھیں، اگر ہا کے اوپر شد نہ ہوتا تو پھر عام جیسے پڑھا جاتا ہے وہاجا، پھر کوئی پرابلم نہیں تھی. اب ہا کے اوپر شد آ گیا ہے، اب اس کو احتیاط سے پڑھنا پڑے گا کہ کہیں ہا کے اوپر جو شد ہے وہ رہ نہ جائے. آپ کو میں ہجے کر کے بتاتا ہوں. واو ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا، واہ، جیم دو زبر جن، واہ جن، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہیں گے تو پھر وقف میں، کیونکہ یہ دو زبر ہیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، تو دو زبر جب وقف کریں گے ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا. اور یعنی عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وقف کریں گے تو یہاں پہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے پھر؟ وہاجا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. آگے ہے ممدداتن. یہاں پر میم کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر شد ہے، میم دال زبر مد. ایسے نہیں پڑھنا، دال ساکن ہو تو پھر میم دال زبر مد ایسے پڑھا جائے گا، کیونکہ دال کے اوپر شد ہے اس لیے زور دے کے پڑھیں گے. شد کی ہاف حالت پڑھی جائے گی، یعنی آدھا حصہ شد کا پڑھا جائے گا جب ہجے کریں گے. پھر دال کے اوپر جو زبر ہے وہ جب پڑھیں گے تو پوری شد جو ہے وہ پڑھیں گے. اچھا، کیسے؟ میم دال زبر مد، دال زبر دا، مد، دال زبر دا، ممددا، ممددا، تا دو تن، ممدداتن. اب یہاں سے فعال، کذابا، وہاجا،
अज़वाजन मुमद्ददातिन। अच्छा, यहाँ पर एक रूल लग रहा है, वो अक्सर लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और तवज्जो से आपने सुनना है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद दोबारा ये गलती ना कीजिएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको, पहले ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, मीम के बाद काफ है, काफ के बाद रा है। अब रा जो है, रा साकिन होता तो फिर काफ रा ज़बर कर, मीम ज़बर मा मुकरमा, ऐसे पढ़ा जाता। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर रा के ऊपर शद है, रा के ऊपर जिस हर्फ के ऊपर शद वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा अपने वाले जो पहला हर्फ होता है उसके साथ मिला के फिर उसके ऊपर जो हरकत होती है वो पढ़ा जाए, हरकत पढ़ी जाती है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? काफ रा ज़बर कर, रा ज़बर रा कर रा, मीम ज़बर मा कर रामा मुकर्रमातिन, ठीक है। अगर शद ना होता तो फिर तो हम जैसे पढ़ते हैं मुकर्रमातन, फिर जोर दे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब शद है तो यही गलती लोग करते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? मुकर्रमातिन। अब यहाँ पे जो कायदा लगता है वो कायदा मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, और ये दूसरी लाइन में दूसरे लफ्ज में यहाँ पे भी लग रहा है। ये बात मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अच्छा जी, कि ये ता हा से कैसे चेंज हो जाता है, कैसे तब्दील हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है, अक्सर लोग हा के ऊपर जो शद है वो छोड़ देते हैं, अपनी जानबूझ के नहीं छोड़ते, गलती उनसे हो जाती है, कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं पढ़ सकते। ये वीडियो देखने के बाद इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा कि दोबारा ये गलती ना आए। अच्छा, मीम पेश मुँह, तो हा ज़बर ता, ता हुरूफ मुस्तालिया में से अपुर पढ़ा जाएगा, और इसका मखरज कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे और ज़ुबान ऊपर के तालू की तरफ उठेगी तो तो पढ़ा जाएगा। और अक्सर लोग पढ़ते हैं ता ता, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ता पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ना है? तो आवाज़ को बाहर निकालें, तो हा ज़बर ता, हा ज़बर हा, ता मुत्तहरातिन, मुत्तहरातिन। ये सूरतुल बय्यिना के अंदर है ये लफ्ज़, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जब सूरतुल बय्यिना 30वें पारे के अंदर जो है वहाँ पर आप ये गलती ना करें। अच्छा जी, ये जो लफ्ज़ है सूरतुत तारिक के शुरू में आता है, वस्समाइ वत्तारिक। अब इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। वाव को सीन से जब मिलाएंगे तो बीच में अलिफ और लाम गिर जाएगा। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, वाव सीन ज़बर वस, सीन ज़बर सा, वस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा, वस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अक्सर लोग जब यहाँ पे वक्फ करते हैं, कोई ऐसी जगह आ जाती है, आयत के दरमियान में भी इस तरह का लफ्ज़ आ जाता है, आयत के शुरू में भी आ जाता है, तो जब वक्फ करते हैं हमज़ा को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप वक्फ करना चाहें तो फिर हमज़ा को साकिन करेंगे और हमज़ा का साउंड पढ़ा जाएगा, हरकत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमज़ा का साउंड, यानी हमज़ा के ऊपर जब पढ़ेंगे तो हमज़ा की आवाज़ आएगी। अगर आप पढ़ते हैं वस्समा, तो ये गलत है। वक्फ करते हैं तो फिर आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा? वस्समा, ये जो ये हमज़ा की आवाज़ आ रही है, ये आना लाजमी है, क्योंकि जब हमज़ा साकिन हो तो हमज़ा झटके से पढ़ा जाता है। कई दफ़ा मैं वीडियोज़ के अंदर जिक्र कर चुका हूँ इस बात का, इस लफ्ज़ का, तो फिर आपको बता रहा हूँ। साकिन हमज़ा जो हो जब हो तो वो झटके से पढ़ा जाता है। जब यहाँ पे वक्फ करेंगे हमज़ा साकिन हो जाएगा, तो लास्ट पे हमज़ा की आवाज़ आना लाजमी है। आवाज़ नहीं आएगी तो फिर गलत पढ़ा जाएगा। अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं, आगे कोई और लफ्ज़ है, तो फिर हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़बर है, जो भी हरकत है वो पढ़ी जाएगी। कैसे? वस्समाई, फिर ये हरकत पढ़ के आगे जो भी हर्फ होगा, वर्ड होगा, लफ्ज़ होगा, वो पढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मुकर्रमातिन,
मुत्तहरातिन वस्समाई। ठीक है, हमने वक्फ नहीं किया, यहाँ पे हमजा के नीचे जो ज़ेर है वो पड़ी है, और ये मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार जो है वो 3 से 5 अलिफ के बराबर है, आप लम्बा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो आपको मैं बात समझा रहा था वो ये बात है, ये दो ज़बर के बाद अलिफ आ जाए वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ, वो आपको पता है कैसे पढ़ना है कि दो ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो अलिफ पढ़ा जाता है, एक ज़बर को अलिफ से चेंज कर दिया जाता है। अगर किसी लफ्ज़, ये अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप ये कायदा लिख लें, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, मुमद्ददातिन, एक ये लफ्ज़ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इनमें क्या बात है, कायदा कौन सा लग रहा है? देखें, ये जो आखिर में है ये कायदा है कि जिस लफ्ज़ पे आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में अगर गोल ता आ जाए तो उस गोल ता को वक्फ करते हुए हा से तब्दील कर देंगे। ठीक है, हा से चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे, तो फिर उस हा को साकिन कर देंगे। यानी यहाँ पे मुमद्ददातिन है, आप वक्फ करेंगे तो इसको मुमद्ददा हा बना देंगे, हा को साकिन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जिस लफ्ज़ के भी आखिर में ता आता है, ता की शक्ल में इस तरह की हा आती है, यानी जिसके ऊपर दो नुक्ते हों वो हा की शक्ल में ता होती है, और जिस लफ्ज़ के आखिर में आएगी वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ता को हा से चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें, मुकर्रमातिन, यहाँ पे भी गोलता है, जब वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे? ता को हा से तब्दील कर देंगे, यानी हा बना देंगे, हा को साकिन कर देंगे वक्फ में। तो मुकर्रमातिन से क्या पढ़ेंगे? मुकर्रमा, आखिर में हा की आवाज़ आना लाजमी है। इसी तरीके से है लफ्ज़ मुत्तहरातिन, अगर वक्फ करना चाहें, रुकना चाहें, क्योंकि आयत के लास्ट पे भी आते हैं, आयत के एंड पे आ रहा है, आपने तो वक्फ करना ही करना है, नहीं करना चाहते वो तो अलग बात है। अगर वक्फ करना चाहते हैं तो फिर इस ता को हा से तब्दील कर देंगे। कैसे? जैसे ये लफ्ज़ जो है सूरत अल-बय्यिना में आता है, सुहुफ़म मुत्तहरा। अब यहाँ पे जब हमने वक्फ किया तो ये ता हा से तब्दील कर देंगे, मुत्तहरातिन नहीं पढ़ेंगे, मुत्तहरा, ये गोल ता का कायदा है। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको कायदा बता रहा हूँ कि जिस लफ्ज़ पे आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में अगर गोल ता आ जाए तो उस गोल ता को हा से तब्दील कर देंगे। ठीक है, और हा को साकिन करके पढ़ेंगे, ये गोल ता है, इसको गोल ता बोलते हैं। समझ आ रही है? अब लफ्ज़ का मतलब क्या है? यानी एक हर्फ हो तो जैसे यहाँ पर ये ता अलग हो तो इसको हर्फ बोलते हैं। ठीक है, और फा अलग हो, जैसे मिसाल के तौर पे हम कायदे के फर्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, अलिफ ये एक हर्फ है, बा ये एक हर्फ है, ता ये एक हर्फ है। ठीक है, और जब ये 3-4 हर्फ मिल जाते हैं आपस में, जैसे मीम, ता, हा, रा, ता, ये 4-5 लफ्ज़ जब 3-4 लफ्ज़ आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये लफ्ज़ बन जाता है, इसको लफ्ज़ कहा जाता है। अब कायदा क्या है? लफ्ज़ के आखिर में, जिस लफ्ज़ पे आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में गोलता हो तो उसको वक्फ करते हुए ता को हा से तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? मुत्तहरातिन, वक्फ किया जाएगा तो मुत्तहरा। अब यहाँ पर ता को वाव से जब मिलाएंगे, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, मिलाना चाहें तो ता को वाव के साथ मिला के पढ़ेंगे, ता वाव दो ज़ेर, त्यूं, मुत्तहरातिन वस्समा। ठीक है, अगर इसको मिला के पढ़ना चाहें तो ता को मीम से मिलाएंगे, यहाँ पे इदगाम यरमलून होगा, ता मीम दो ज़ेर, तिम, मुकर्रमातिम। ओके, और यहाँ पे आपको बता चुका हूँ अगर मुमद्ददातिन को मिला के पढ़ना चाहें तो मीम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इदगाम यरमलून होगा।
وقف کریں گے تو تا کو ہا سے تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ الفاظ تھے جو آج آپ کو میں نے سکھانا تھا، تاکہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اگر آپ میں سے کوئی غلط پڑھتا ہے تو اس کو سیکھ جائے اور اچھے طریقے سے پڑھے، اور جب قرآن پاک پڑھنے لگے تو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے غلطی سے بچے اور اچھے طریقے سے پڑھ کے اپنے آپ کو بھی سکون دے اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔